Okay, friends, so welcome to our YouTube channel What and Let. And now we are moving towards our second lecture today in the series of microprocessors. So, what all topic, friends, we are going to cover in this lecture? It will be a very important lecture because we'll be covering certain important aspects about the various languages. You should have a proper understanding of them. So, what is your machine language? What is the 8085 machine language? That very important. Then we'll discuss about the assembly language, and we'll discuss certain aspects of the low level language and the differences between low level and high level languages as well. Fine. Now this will give you this lecture will also give you a brief understanding of various instructions. How are the instructions of 8085, how are they fed in the memory, and what is the size of them, what are the assembly language, mnemonics, and all these things. So just be very patient and try to understand it. Fine. This will also give you a brief understanding of the contents which are going to come forward in the next lectures. Fine. So first of all, as we all know, what is a machine language? That the number of bits that form the word of a microprocessor is called that particular, is fixed for that particular processor. Fine. These bits define a maximum number of combinations. For example, if I talk about processor 8085, the total number of bits which it can process, that is one word जो उसका बनेगा, एक बाइट जो बनेगी वो कितनी होती है, उसकी 8 बिट्स होती हैं. फाइन. तो प्रोसेसर 8085 में यदि मैं बात करूं तो 8 बिट का प्रोसेसर है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे इन बिट्स के? तो वो बनेंगे 2 to the power of 8, that is 256 different combinations. Fine. However, in most microprocessors not all the combinations are used. So कई प्रोसेसर्स में ऐसा होता है कि हम सारे कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल नहीं करते. कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 256 बने हैं तो सारे 256 का यूज ही हो जाए. ठीक. नाउ certain patterns are chosen and assigned specific meanings. For example, there are certain sequence which is chosen and it has been assigned कि इसका काम ये फलाना काम है. ठीक. Each of these patterns form an instruction for the processor. For example, let me tell you, if I talk about, let's see this, I'll move on to this slide later. For example, if I'm coming about for example processor 8085 only, now you can see that मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि if you can see here that what are you seeing, we are seeing that there is an 8-bit instruction which says 000, सॉरी 00111100. ठीक. अब इसको हमने हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो हेक्साडेसिमल में 8421 के हिसाब से इसे बनाना है आपको. 8421 आपको ये बात पता होगी लेकिन फिर भी बता देते हैं. 8421 फॉर एग्जांपल आपको क्या बनाना है, भाई आपको 3 बनाना है. तो क्या आएगा, आप यहाँ पर जहां से 3 बन रहा हो ऐड करने पे वो आप रखिए. तो क्या आएगा, 0000 और 2 और 1 जोड़ के क्या बनेगा, 3 बनेगा. तो 1 और 1. ठीक. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 3. और सिमिलरली क्या बनाया आपने, 1100, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1100 के जानते हैं आप सी का मतलब हेक्साडेसिमल में 12 होता है. तो इसको क्या लिख दिया आपने, 1100. तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 3C. ठीक. तो देखिए ये 3 है, ये C है. तो हमने हेक्साडेसिमल नोटेशन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा बाइनरी नंबर है, तो हम इसको हेक्साडेसिमल में नोटेशन यूज करते हैं. और हम कई बार अपनी किट्स में प्रैक्टिकल करते वक्त भी हम हेक्स असेंबली यूज करते हैं, हम हेक्स असेंबली डाल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने डाला प्रोसेसर में 3C. ठीक. ये तो मशीन लैंग्वेज में डाला हमने. अब प्रोसेसर, इसको क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए इसका मतलब होगा INRA. अभी मैं समझ रहा हूँ कि ये इनिशियल लेक्चर है और अभी कई लोगों को ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है इसे बहुत अच्छे से नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी मैं टॉपिक के अंदर जाने से पहले ही उसको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज मशीन कह रही है आपसे, कि मशीन आपसे कह रही है कि मतलब मशीन ने अपने लिए बनाया है कि 00111100, अगर मशीन के लिए ये चीज आप डाल रहे हैं तो इसका मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं मशीन से कि वो INRA करे, यानी कि प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट्स हैं उनमें एक का इंक्रीमेंट कर दे. फाइन. तो हमारे लिए, क्योंकि हमें समझ में आए, असेंबली लैंग्वेज में हमने निमोनिक्स बनाए. निमोनिक्स का मतलब होता है माइंडफुल. हमने क्या बनाया, INRA. ठीक. इसका मतलब यह है कि एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट्स हैं, प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर, जो जिसमें उसके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके रिजल्ट वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है. तो हम INRA का मतलब ये कहना चाहते हैं कि एक्यूमुलेटर के जो भी कंटेंट्स हैं उसमें आप 1 का इंक्रीमेंट कर दीजिए. ठीक. चलिए, तो क्या बात कर रहे थे हम, कि ईच ऑफ दीज पैटर्न्स हैव चोजन एंड असाइंड मीनिंग्स. अब इसका मतलब हमें समझ में आता है. जैसे कि पीछे हमने देखा, पीछे क्या था इंस्ट्रक्शन, 00111100, यानी कि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब मशीन लैंग्वेज में क्या है दोस्तों, इसका मतलब है मशीन लैंग्वेज में INRA, यानी कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को एक बार इंक्रीज कर दो. ठीक. यानी कि पर्टिकुलर
जो पैटर्न्स हैं उनको एक पर्टिकुलर मीनिंग असाइन कर दिया है, मशीन उसी का मीनिंग समझती है। ठीक, जैसे कि मैंने बोला कि ईच ऑफ दीज पैटर्न्स फॉर्म एन इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोसेसर। जैसे कि देखिए इस पैटर्न ने जिसका नाम 0011 और 1100 है, जिसको हेक्साडेसिमल में हम क्या लिख सकते थे, हेक्स हमने लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल में हमने से क्या लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल में हमने से लिखा हुआ है 3C 3CH। ये क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि मशीन का क्या करेगी, मशीन ये कह रही है कि आप अक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को क्या करिए, एक बार आप इंक्रीज कर दीजिए। ठीक, तो आपके लिए वो INRA है, मशीन के लिए वो है 00111100। अब एक प्रोग्रामर को समझ में नहीं आता कि 0011 और 1100 क्या है, तो उसके लिए ये निमोनिक्स बनाए हैं, उसके लिए असेंबली लैंग्वेज बनाई गई है कि वो इजीली क्या कर सके, इस इंस्ट्रक्शंस को दे सके और प्रोग्राम्स बना सके। ठीक, आगे देखते हैं, द कंप्लीट सेट ऑफ पैटर्न्स मेक्स अप द माइक्रोप्रोसेसर्स इंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये कंप्लीट सेट ऑफ जो पैटर्न्स होंगे ये क्या बनाएंगे, माइक्रोप्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन बनाएंगे। देखिए तो मैंने क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्लाइड 2 भी आपके साथ कवर करी आपको मशीन लैंग्वेज समझाते हुए। तो ये क्या है, 8085 इंटेल का 8 बिट का प्रोसेसर है, ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि सारे यूज नहीं करेगा तो ये टोटल कितने यूज करता है, 246 बिट्स पैटर्न्स हैं जो इसके, जिससे ये अपने इंस्ट्रक्शन सेट को बनाता है, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं 74 इंस्ट्रक्शंस को। आगे बढ़ते हैं, द रीजन फॉर डिफरेंस इज दैट सम एक्चुअली मोस्ट इंस्ट्रक्शंस हैव मल्टीपल और डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है, आगे बढ़े, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर टू एंटर the bit patterns correctly, it is very difficult to enter the bit patterns correctly. They are usually entered in the हेक्साडेसिमल इंस्टेड ऑफ बाइनरी। ये मैंने आपको बताया, जैसे कि बिट पैटर्न आपको मान लीजिए आप मशीन में प्रोग्राम डालना है, आप क्या डालेंगे 0011 1100, इसमें गलती होने का चांस है, तो हम कैसे डालते हैं, हेक्साडेसिमल में डालते हैं। यानी कि ये पूरा 100111100 ये सीक्वेंस ना डाल के आप क्या डाल दीजिए 3CH। और देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि इफ यू आर डूइंग प्रोग्राम ऑन दी kit, then you will enter, we enter hex assembly. When I do programming with my students, I enter the hex assembly only in the kit of 8085. Fine, so you'll enter 3CH, and in the contrary assembly language mode में, assembler mode में, इसका मतलब क्या है, its meaning is INRA. Fine, so in order to express any number in hexadecimal you use this 8421 notations, and you just add, you want to make 3, what you'll do 0011. See, so it's 3, it's 3, 2 plus 1 3, and then you want to make C is 1100, so that is 8 or 4 12. We know it is T, so 12 in hexadecimal is C. Fine, assembly language, ये बात मैं आपको बता दी, entering the instructions using hexadecimal is quite easier than entering the binary combinations. However, it is still difficult to understand what a program says in hexadecimal codes. बिल्कुल सही बात है भाई, ये बहुत मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल भाई अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है और हमें कोई बोले हेक्स कोड लिखे हुए 3C एंटर 32 H एंटर 45H, हमें थोड़ा ना पता कि क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रोग्रामर को नहीं पता, तो उसके लिए क्या बनाने पड़े, एक ग्रीक वर्ड होता है निमोनिक्स, जिसे बोलते हैं माइंडफुल। ठीक, जैसे कि अभी पीछे आपने देखा कि जो हेक्स में, जो इंस्ट्रक्शन हेक्स में आपने पीछे स्लाइड में वी जस्ट सॉ, जो इंस्ट्रक्शन हेक्स में क्या था आपके लिए 3CH था हेक्स असेंबली में, मशीन लैंग्वेज में, उस इंस्ट्रक्शन का मतलब एक प्रोग्रामर के लिए जब वो उसे यूज कर रहा था, तो प्रोग्रामर उसे कैसे यूज कर रहा था, INRA, INRA, यानी कि 3CH मशीन के लिए, परंतु हमारे लिए यूज करते वक्त क्या, INRA। तो हमारे लिए सिंपली ये आसान है। देखिए INRA, मैं बोलूँ DCRA का क्या मतलब है कि क्या करे भाई, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को डिक्रीज कर दो। देखिए मैं यही एक और दिखाता हूँ आपको, शायद आगे कभी स्लाइड्स में काम है। देखिए अगर मैं बोलूँ मूव A, B, हो सकता है इसका हेक्स में इसका कोई और कोड हो, हेक्स में इसका कोई और मतलब है। ठीक, लेकिन हमारे लिए ये एक माइंडफुल मतलब है, मुझे समझ में आ रहा है मूव A, B, और सिंटेक्स क्या होता है, देखिए ये सोर्स होती है, ये डेस्टिनेशन होता है। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये कंटेंट्स ऑफ बी को रजिस्टर, एक रजिस्टर होता है प्रोसेसर के अंदर, आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 उसमें हम देखेंगे इस चीज को, ये रजिस्टर बी के कंटेंट्स को रजिस्टर ए में क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके लिए मान लीजिए होता है 24H फॉर एग्जाम्पल, तो 24H हमें समझ में नहीं आता, लेकिन असेंबली लैंग्वेज हम जो बनाई है उसमें हमने निमोनिक्स लिए हैं, माइंडफुल वर्ड्स लिए हैं, जैसे कि मूव A, B, मतलब बी का डेटा ए में कॉपी कर दो, INRA इसका मतलब क्या करो, अक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में एक इंक्रीज कर दो। ठीक, सो ईच वन ऑफ इट डिफाइंस अ सिंबॉलिक कोड फॉर द इंस्ट्रक्शंस। फाइन,
जैसा कि मैंने बोला, दीज आर कॉल्ड निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता है माइंडफुल, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक। द निमोनिक फॉर ईच इंस्ट्रक्शन इज यूजुअली अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट सजेस्ट द ऑपरेशन परफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मूव ए कॉमा बी क्या कर रहा है, बी के कंटेंट्स को ए में मूव कर दे रहा है। एक और बता देते हैं आपको, यहीं पर है। ये देखिए, अब पढ़ाते पढ़ाते आपको हम साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी बताते जा रहे हैं। जब आप आगे देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन इंस्ट्रक्शंस का यूज होगा आगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन लेता हूँ, हेक्स में इसका कोई और कोड होगा मुझे नहीं पता। फ्रैंकली स्पीकिंग हेक्स कोड्स हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है। अगर मैं बोलूं, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया ऐड बी, ठीक, ये सिंटेक्स है ऐड बी। तो ये क्या करेगा, ऐड बी क्या करेगा मेरे लिए, ये बहुत सिंपल है। ये क्या करेगा, अक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को किसके कंटेंट से ऐड कर देगा, अक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को रजिस्टर बी के कंटेंट से ऐड करेगा, और रिजल्ट जो होगा बेटा वो वापस किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द अक्यूमुलेटर ओनली, ठीक। रिजल्ट कहाँ जाएगा, ये आपका क्या है, दिस इज योर रिजल्ट, फाइन। रिजल्ट विल गो इन अक्यूमुलेटर। ठीक, चलिए। तो ये हो गई असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात। आई होप आपको एक क्लैरिटी बन रही होगी प्रोसेसर के बेसिक्स के बारे में। आगे बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, देखिए मैंने अभी बोला आपको, अभी हम ये तो हम पीछे ही देख के आए, 00111100। इसका मतलब है, इसका निमोनिक INRA 3CH इसका हेक्स कोड है। देखिए, ये स्लाइड के बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ये क्या कर रहा है, 3CH एक हेक्साडेसिमल है, ऑप कोड, यानी कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 00111100 3C है। और निमोनिक जो है इसका, यानी कि इसका जो असेंबली लैंग्वेज मतलब है वो है INRA, विच मीन्स इंक्रीमेंट द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ए। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये इसका एक इंस्ट्रक्शन है INR, ये क्या करता है, ये इंक्रीमेंट करता है कंटेंट्स को। तो मैं आपको यदि बताऊं तो बड़ा सिंपल है। यदि मैं बोलूं कि मुझे INR करना है, तो मैं जरूरी नहीं है कि मैं ए लूं, मैं कुछ भी ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ कर दूं फ्रेंड्स INR बी कर दूं, तो मैं जानता हूं एक रजिस्टर इसके अंदर बी है, उसके कंटेंट्स भी इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि ए यूज करना है, आगे हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा INR का क्या मतलब है, ठीक है। आगे देखते हैं, अनदर एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स, 10000000, तो यानी इसका मतलब हेक्स में क्या हो गया, मैंने आपको बताया 8421 के हिसाब से। देखिए 8421 के हिसाब से आप देखें, यदि 8421 के हिसाब से देखें, 8421 मुझे हेक्स कोड बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसका हेक्स कोड, 8421 और 8421 के हिसाब से। ये देखिए, ये मुझे 8 बनाना है, तो क्या हो गया, ये हो गया 1000। और अब मुझे क्या बनाना है, जीरो। तो जीरो के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सब जगह पे मैंने क्या कर दिया, सब जगह पे मैंने जीरो कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक। तो अब क्या होगा, इसका मतलब मान लीजिए आपके लिए 80H है, लेकिन मशीन के लिए इसका क्या मतलब है, इसका निमोनिक, सॉरी मशीन, हाँ मतलब मशीन के लिए 80H है। और निमोनिक क्या है इसका, असेंबली लैंग्वेज का इसका मतलब ये है। देखिए, इट एड्स दी ऐड बी मींस ऐड द रजिस्टर बी टू अक्यूमुलेटर एंड कीप द रिजल्ट इन अक्यूमुलेटर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट स्लाइड में इसका मतलब एक्सप्लेन कर चुका था। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको इसका मतलब एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जाम्पल देखिए 8B, तो अगर ऐड बी है तो ऐड बी क्या कर रहा है, तो ऐड बी का देखिए हेक्स कोड क्या है, हेक्स कोड इसका 80H है। लेकिन हमारे लिए इसका क्या मतलब है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे लिए दिस इज adding the contents of B to register A and storing the result again in register A itself, फाइन। सो ये मतलब है, जैसे कि कुछ चीजें जो मशीन के लिए बाइनरी में है, हमने उन्हें हेक्स कोड में भी कर दिया, वो मशीन के लिए वो मशीन लैंग्वेज है। लेकिन हमारे लिए हमने कुछ माइंडफुल लैंग्वेज बनाई है, कुछ मीनिंगफुल लैंग्वेज बनाई है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे, असेंबली लैंग्वेज। तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई ये इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर क्या काम कर रहा है। तो हमें केवल इसका इंस्ट्रक्शन सेट याद करना होगा, ताकि हम क्या कर सके, हम इसकी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर सके, हमें हेक्स कोड्स याद करने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो असेंबली लैंग्वेज के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कंप्लीटली मशीन डिपेंडेंट है, यानी कि एक मशीन पे लिखा हुआ असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कोड आप दूसरी मशीन पे जाके नहीं चला सकते, ठीक। चलिए, तो दिस मींस दैट दे आर नॉन ट्रांसफरेबल from one microprocessor to a different one. For example, Motorola has an 8-bit microprocessor called the 6800. The 8085 machine language is very different from that of 6800. So is the assembly language, fine. So a program written for 8085 cannot be written on another microprocessor, for example Motorola 6800 and vice versa, ठीक। यानी कि जिस मशीन के लिए लिखा गया है वो उसी मशीन पे रन करेगा, इट इज मशीन डिपेंडेंट, फाइन। प्रोग्राम को असेंबलिंग कैसे की जाती है, देखिए आप जानते हैं कि हमें फाइनली तो उसे क्या करना है, मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करना है,
ठीक। तो असेंबली लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है उसके लिए हम असेंबलर यूज करते हैं। असेंबलर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। फाइन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं, हमें पता है कि असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। ये क्या है, ये एक और यहाँ पर एक बात और बता दूं फ्रेंड्स आपको, हाई लेवल लैंग्वेज में यही काम क्या करते हैं असेंबलर्स और इंटरप्रेटर्स करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट में मशीन जो काम करेगी वो मशीन लैंग्वेज पे ही काम करेगी। ठीक। तो या चाहे आप असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर लो, चाहे आप हाई लेवल लैंग्वेज में कर लो। असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल आपकी सी, सी प्लस प्लस, जावा, आप जिसमें भी करो कन्वर्ट उसे वापस किस में होना है, उसे मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होना है। तो असेंबली को यदि मशीन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या यूज करोगे, असेंबलर यूज करोगे। और यदि आपको हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है तो आप क्या यूज करोगे, कंपाइलर्स या इंटरप्रेटर्स यूज करोगे उसे कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में। ठीक। तो देखिए हमने समराइज किया यहाँ पर कि लो लेवल लैंग्वेज के क्या एग्जाम्पल्स हैं, मतलब क्या फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है, ये मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज बहुत हाईली मेमोरी एफिशिएंट होती है। इसका प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है, उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें ज्यादा साइज की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। रिलेटिवली टफ टू अंडरस्टैंड है, एक कॉम्प्लेक्स टू डीबग भी है। इसके अंदर एरर्स फाइंड करना, लो लेवल लैंग्वेज में एरर्स फाइंड करना जो होता है वो क्या होता है, वो मुश्किल काम है। ठीक। इट इज कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन कंपैरेटिवली, इट इज नॉन पोर्टेबल, इट इज मशीन डिपेंडेंट, ये हमने बताया आपको, ये मशीन डिपेंडेंट होती है। इट रिक्वायर्स असेंबलर फॉर ट्रांसलेशन, इसको असेंबलर की जरूरत पड़ती है ट्रांसलेशन के लिए, और कॉमनली हम इसका इस्तेमाल जो है हम नहीं करते। ठीक। और फिर हाई लेवल लैंग्वेज, ये हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, ये प्रोग्रामर फ्रेंडली है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है लेस मेमोरी एफिशिएंट है। हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है। हाई लेवल लैंग्वेज को आसानी से डिबग भी किया जा सकता है। इट इज सिंपल टू मेंटेन, इट इज पोर्टेबल, इट रिक्वायर्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर, एंड इट इज ऑल्सो यूज वाइडली फॉर प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि असेंबली लैंग्वेज यूज नहीं होती। अभी भी कुछ जो हमारी स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशंस होती है उनके लिए हम असेंबली लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए असेंबली लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस का तो बहुत जगह जगह पे इस्तेमाल होता है, गेमिंग में, आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, बिलिंग में, ई टैक्स फाइलिंग एंड ऑल ऑल ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं है जहाँ हाई लेवल लैंग्वेज का यूज ना हो। ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असेंबली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल नहीं होता। फाइन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस एंड लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।